Welcome student. So today we will discuss about the business economics. Before discussing about the business economics in detail, let's discuss the two terms business and economic individually, and later on we will discuss deeply about the business economics. In business economics, we will discuss how externally and internal factors affect the business. In this video, we will discuss it. Let's start the topic. Hello student. Today we will discuss the business economics. What is business economics? Business economics is a combination of two words, business and economics. Business is the activity, all the activity through which we can earn money is called business. And economics is all the economic factor which affect the business and its production is called economics. Business economics is playing an important role in our daily economic life and business practices. Organizations face many problems on a daily or day-to-day basis. For example, organizations are always concerned with producing maximum output in the most economical way. आपने सुना होगा कि बिजनेस में हर कोई ये चाहता है, या बिजनेस हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी एक रूटीन में भी हम ये चाहते हैं कि हम कम से कम खर्चे में हमारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो सके या प्रोड्यूस हो सके. तो ऐसे ही बिजनेस में होता है कि वो मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं और साथ के साथ ये भी चाहते हैं कि वो इकोनॉमिकल वे में हो, यानी कि उसमें खर्चा कम हो. तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीजें हम तभी कर सकते हैं जब हमें हमारे रिसोर्सेस पता हो और हमें ये पता हो कि हमें उसको कैसे यूज करके इकोनॉमिकल वे में अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम करना है. एंड जब प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली आप उसको सेल आउट करेंगे एंड यू विल गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट एज वेल. So we can take the definition also. Managerial economics or business economics, you can say, is concerned with the application of economic concept and economics to the problem of formulating and rational decision making. So now we will discuss basic problem of an economy working of the price mechanism. See, we have the scarce resources. हमारे पास कम resources हैं, चीज़ें हमारे पास कम है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हमारे पास स्कैर्स ही हैं. सो वी हैव टू थिंक कि हमें कितना कैसे यूटिलाइजेशन करना है उन्हीं रिसोर्सेज का. सो हमारे सामने 4 पॉइंट आते हैं कि हमें करना क्या क्या है. तो फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज. तो जब हम अपने प्रोडक्शन कर रहे हैं जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस का, जो भी हमारे बिजनेस का है, तो द फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज टू डिसाइड what goods and services are to be produced and in what quantity. सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है. इट मीन्स कि हमारे if we are producing the product and services only for the nation or only for your country, तो आप अपनी कंट्री में कितना प्रोडक्शन करना है और क्या प्रोडक्शन करना है हमारे लोगों के अकॉर्डिंग, वो सोचना, उसको करना, उसके बारे में सोचना, दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी. नंबर 2 इज हाउ टू प्रोड्यूस दीज प्रोडक्ट और गुड्स, यू कैन से. द नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज टू डिसाइड अबाउट द टेक्निक और मेथड to be used in order to produce the required goods. अब हमें ये देखना है कि हमें प्रोडक्शन क्या करना है, ये हमने डिसाइड कर लिया, और कितनी क्वांटिटी में करनी है ये हमने डिसाइड कर लिया. लेकिन नाउ वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू एनालाइज अबाउट द टेक्निक्स थ्रू विच दीज गुड्स, वॉट एवर द गुड्स द बिजनेस इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस, वो कैसे प्रोड्यूस करना है, क्या टेक्निक या मैथड यूज करने हैं. एग्जाम्पल यू कैन से लाइक इफ लैंड इज अवेलेबल इन अबंडेंस, it may have extensive cultivation. If land is scarce, intensive method of cultivation may be used. If labor is in abundance, it may be used labor intensive technique. While in the case of labor shortage, capital intensive technique may be used. So हमें कैसे करना है, क्या करना है, what technology, what method we can use to produce maximum and economically, that is the another question for the economy. थर्ड वन इज फॉर whom is to be good produced. किसके लिए हम गुड्स जो हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं. द थर्ड बेसिक प्रॉब्लम इज टू बी डिसाइडेड इज द एलोकेशन ऑफ द गुड्स अमंग द मेंबर ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि हमारे नेशन में अगर हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं या, तो हमारे लिए क्या हमारे कस्टमर्स हैं या क्या हमारी सोसाइटी है, किन के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है for the business and for the economic activity for the business, so that
हम अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्शन करेंगे और अकॉर्डिंगली ही अपनी सारी स्ट्रैटेजीज को या टेक्निक्स को प्रॉपरली यूज कर पाएंगे. ओके, and the fourth one is how efficiently are the resources being utilized. This is one of the important basic problem of an economy, because having made the three earlier decision, the society has to see whether the resources it owes are being utilized fully or not. In case the resources of the economy are lying idle, it has to be find out the way and means to utilize them fully. कि हमें कितना एफिशिएंटली हम अपने रिसोर्सेस को यूज कर रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है. क्योंकि हमारे रिसोर्सेज अगर हमारे पास हैं और हम उसे प्रॉपर यूज कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड. हमें इसके लिए भी नॉलेज होनी चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इफ वी डू नॉट हैव द नॉलेज, दैट विल बी लाइंग आइडल. एंड इफ इट विल बी लाइंग आइडल, तो ना ही कोई प्रोडक्शन होना है, ना ही कोई उसका मीन्स रह जाएगा, और ना ही उसका यूटिलाइजेशन होगा. So this is the very important topic or very important question we should think about, how efficiently we can use the resources whatever we have and whatever we can produce. Now let's discuss about the importance of business economics. Business economics plays an important role in decision making in an organization. Decision making is a process of selecting the best course of action from the available alternatives. तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए क्या हमें जानना है. तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशन. फर्स्ट we have to think what is the problem and we have to find out the solution. For this we need to learn and we need to discuss, we need to understand the concept of business economics. The second one is identify, analyze various internal and external business factors. As we know, every business has internal and external factor which effectively affect the business. इंटरनल फैक्टर भी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी बिजनेस को अफेक्ट करने हैं. तो ये भी एनालाइज करना कि हमें कौन से बिजनेस, हमारे कौन से फैक्टर एक्सटर्नल और इंटरनल हमारे बिजनेस को अच्छी तरीके से या फिर नेगेटिवली इफेक्ट कर रहे हैं, ये भी आइडेंटिफाई करना, और ये हम बिजनेस इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं. फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज, अकॉर्डिंगली जब हम ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे, देन वी कैन frame the various policies, and also externally we can use the various policy according to our business. Predict the future. Future prediction is like a forecasting के भविष्य में या फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट के क्या प्राइसेस रहने वाले हैं, क्या डिमांड रहने वाली है, या क्या उसकी क्वालिटी लोग पसंद करना चाहते हैं, या जो भी है, ये सारी चीजों का प्रेडिक्शन भी ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर वी कैन एनालाइज. The next one is establishing relationship between the different economic factor. ये देखना कि जो हमारे पास factors हैं, different economic factor we are having, we have to establish the relationship between them. So for all these factor, we have to understand the concept of business economics. Now let's discuss about the microeconomics. See, there are two types or two branches of economics, microeconomics and macroeconomics. The first one is the microeconomics. Before reading in detail, we can discuss in a very short way. Micro means छोटा, एक unit, individual unit, छोटी unit या एक business. Macro means बड़ा, we can take a group of units. Okay, so microeconomics is the study of decision made by the people and business regarding the allocation of resources and prices of the goods and services for a single unit, or you can say for individual unit. हम एक बिजनेस की बात अगर कर रहे हैं, हम उसके फैक्टर्स की अगर हम बात कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. एक बिजनेस के इकोनॉमिक फैक्टर्स की इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर ऑफ वन बिजनेस यूनिट, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी होंगी. See, the key role of microeconomics is to examine how a company could maximize its production and capacity so that it could be lower the prices and compete in its industry. A lot of microeconomics information can be obtained from the financial statement. So key factors of microeconomics are demand and supply and equilibrium for one unit for individual business, or you can say एक बिजनेस कंसर्न की उसका जो प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी डिमांड, उसकी सप्लाई, उसका इक्विलिब्रियम. प्रोडक्शन थ्योरी फॉर द सिंगल और इंडिविजुअल यूनिट. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
लेबर इकोनॉमिक्स, एग्जाम्पल इंडिविजुअल डिमांड एंड प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम किसी एक बिजनेस यूनिट की बात कर रहे हैं और उस एक बिजनेस यूनिट में प्रोडक्शन हो रहा होगा गुड्स या सर्विसेज का, तो उसकी क्या डिमांड है, उसकी क्या सप्लाई है, क्या किस प्रोडक्शन थ्योरी को यूज किया जा रहा है, क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर इकोनॉमिक क्या है, ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं। एंड नाउ डिस्कस अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स. It is a combination of or group of all the branches. Macroeconomics is a branch of economics that depicts a substantial picture. Itself with the economy as at a massive scale, and several issues of an economy are considered. अभी मैंने आपको बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं तो सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रुप ऑफ द यूनिट्स और ग्रुप ऑफ द बिजनेस, यू कैन से द ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स. तो बेसिकली इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कैपिटलिस्ट नेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू ऑफ एंटायर ग्रुप ऑफ द बिजनेस और एट द एंटायर कंट्री. Now the next topic is concept of measurement of elasticity of demand. So इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हम डिस्कस करते हैं what is the meaning of elasticity and what is the meaning of demand. Elasticity is the elasticity you can say like a rubber. रबर को हम खींचते हैं तो वो बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट होती है, यानी घटती और बढ़ती है, एक्सपेंड होती है और कम होती है. वही एग्जैक्टली हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में. और डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर या पर्टिकुलर रेट पर कितना उसके कस्टमर उसको चाहते हैं, उसको खरीदना चाहते हैं, दैट इज डिमांड. तो अब हम इसमें पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट में कि हम डिमांड की इलास्टिसिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं, किन फैक्टर्स के बेसिस पे हम उन्हें मेजर कर सकते हैं. अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी अफेक्ट इट्स डिमांड. वी कैन फाइंड the elasticity of demand or the degree of responsiveness of demand by comparing the percentage of the price changes with the quantity demanded. In this, we will look at the concept of elasticity of demand and take a quick look at its various types. तो elasticity of demand means कि demand का घटना और बढ़ना, quantity demand का घटना और बढ़ना, हमें ये इस टॉपिक में पढ़ना है. तो elasticity of demand means डिमांड रहेगी लेकिन क्वांटिटी डिमांड कितनी रहेगी, किस फैक्टर से इफेक्ट हो रही है, हमें इस कॉन्सेप्ट में यही पढ़ना है. सो द फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द टॉप 5 मेथड यूज्ड फॉर मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये 5 मेथड है जिनके बेसिस पे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं. नंबर 1 इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Price elasticity of demand is a measurement of change in the consumption of the product in relation to the changes in its price. जैसे ही किसी प्रोडक्ट का या किसी गुड्स का सर्विसेज का प्राइस में चेंजेस आता है, उसकी क्वांटिटी डिमांड में भी चेंजेस आता है. प्राइस इलास्टिसिटी इसी बात को बताती है. देखिए परसेंटेज, इसका फॉर्मूला है प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द प्राइस. प्राइस में कितना चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है. इसमें छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं. जैसे कि सीजन में अगर एप्पल आप ले रहे हैं, अगर एप्पल आपको एक प्राइस पर मिल रहा है और वो प्राइस आपको अफोर्डेबल है, तो आप उसकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा लेना पसंद करेंगे या जितनी आपको रिक्वायर्ड है. लेकिन जैसे ही वो एप्पल के प्राइस बढ़ जाएंगे, जब उसके प्राइस बढ़ गए तो आप उसकी डिमांड खत्म नहीं होगी. दैट डजंट मीन कि आप एप्पल खाना बंद कर देंगे, लेकिन आप उसका जो क्वांटिटी डिमांड है यानी कि 1 kg 2 kg दैट इज द क्वांटिटी, वो क्वांटिटी में आपका चेंज आ जाएगा. दिस इज द मेजरमेंट एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Number 2 is income elasticity of demand. Now the quantity demand is also affected by the income of the customer. जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होगी या इनकम स्टेबल रहेगी, अकॉर्डिंगली ही कस्टमर और बायर आपके प्रोडक्ट को या आपकी चीजों को परचेज करेगा. यानी इनकम इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच इफेक्ट द क्वांटिटी डिमांड. ऑब्वियसली जितनी इनकम होगी अकॉर्डिंगली आप खर्चा करेंगे. तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन द इनकम. The next one is cross elasticity of demand.
इट मीन्स एक प्रोडक्ट या उसका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिमांड का या क्वांटिटी डिमांड का चेंज होना. इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज. The cross elasticity measure the responsiveness of quantity demanded to changes in the price of other goods and services. Cross elasticity of demanded is defined as the percentage change in the quantity demanded of one good caused by a percentage change in the price of the some other goods. किसी एक प्रोडक्ट या गुड्स के प्राइस के घटने कम होने या ज़्यादा होने से उसी से रिलेटेड दूसरे गुड्स के प्राइस पर या क्वांटिटी पर इफेक्ट पड़ना, दैट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ ब्रेड बटर, कार पेट्रोल या व्हीकल पेट्रोल एक्सेट्रा. The next one is advertisement or promotional elasticity of the sales. As the name or heading implies, sometime demand अगर कम भी हो रही होती है तो एडवर्टाइजमेंट या प्रमोशनल एक्टिविटी से सेल्स को इंक्रीज किया जा सकता है या डिमांड को बढ़ाया जा सकता है. द एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हेल्प इन द प्रमोटिंग सेल्स एंड द इम्पैक्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑन सेल इज नॉट यूनिफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ टोटल सेल. हर जगह पर एक जैसा नहीं होगा, बट इट ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. The last one is elasticity of price expectations, which is also very important. Sometimes what happen, people price expectation also play a significant role as a determinant of demand. It means sometime what happen, आपको अगर ये पता चले कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, तो you will purchase the quantity demand of that particular product according to the future expectation and future you can say future ideas. Like हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आपको कोई अभी बोल दे कि किसी ने अगर बोला कि गोल्ड के प्राइसेस आगे और बढ़ने वाले हैं, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो, इफ यू वांट टू परचेज द गुड्स यू कैन परचेज राइट नाउ. आप अभी खरीदना पसंद करोगे. अभी आपको कोई ये बोले कि प्याज के प्राइस बढ़ने वाले हैं या टमाटोज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, ये चीज़ महंगी होने वाली है, सो व्हाट यू विल डू, इस चीज़ों को आप यूज़ करेंगे. इनकी क्वांटिटी जो इस समय प्राइस है महंगी होने के बावजूद भी आपको ये लग रहा है कि फ्यूचर में और महंगी हो सकती है, आप उसे खरीद लोगे. आपकी क्वांटिटी डिमांड इफेक्ट करेगी on the basis of price expectation rise or maybe fall in the future. So the formula of this is relative change in the expected future prices upon relative change in the current prices.